aber jetzt nicht mehr. So, das ist Modelltest 5, Teil 2. Okay. So, Tandemfamilie. Die Auffassung war früher selbstverständlich, gegenseitig auf die Kinder. Gegenseitig means mutually. आप पड़ोसियों के बच्चों की केयर करते हो, पड़ोसियों के बच्चे आपके नहीं, पड़ोसी लोग आपके बच्चों की केयर करते हैं. Und prominent Beispiel aus der Literatur ist wohl die Kinderbuchreihe Wir Kinder aus Bullerbu von Astrid Lindgren. Das ist vielleicht ein Buch. किसी बुक में भी इसका जिक्र है. Diese Erzählung spielt in einem schwedischen Weiler, wo sich die insgesamt 7 Kinder frei zwischen den 3 elterlichen Hofen bewegen und überall willkommen sind. वहां पे उन्होंने बोला है कि किस तरीके से कुछ बच्चे हैं 7 चिल्ड्रन, वो आसपास में कैसे भी घूमते हैं इधर उधर और वो केयर करते हैं आपस में सब. Nun hat das zersiedelte schweizerische Mittelstand des 21. Jahrhunderts nicht viel gemein mit dem Wiederview vergangener Zeiten. Der Stolzrotz ist ein verlässlich Tandemfamilie zeitgemäßer denn je. Oft wohnen die Großeltern und andere Verwandte zu weit weg. बट जो पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो चीज अभी नहीं है. In Switzerland oft wohnen die Großeltern und andere Verwandte zu weit weg. People don't live nearby. Auf die Kinder aufzupassen. Und selbst wenn Großmütter kleiner Kinder in der Nähe wohnen, sind sie häufig noch berufstätig. Even दादी लोग अगर आसपास रहती भी है, पहली बात तो रहती नहीं, अगर आसपास में दादी वगैरह रहती भी है, they don't have time. They are often, häufig means mostly they are working. दादी होके भी working है. Und haben daher nur wenig Zeit, ihre Enkel zu beaufsichtigen. Kindergarten oder Hortplätze als Alternative sind selten. Even there are no enough Kindergarten. So das ist ein großes Problem dann. Die Öffnungszeiten. Geld und haben oft zu kurze Öffnungszeiten. Kindergarten अगर है भी जहाँ बच्चों को छोड़ा जा सके, उनका टाइमिंग बहुत कम है. 4 hours के लिए, 3 hours के लिए. Die Vorteile eines Betreuungstandems sind klar. Es belastet das Budget nicht. Die Betreuungszeiten und flexibler und je länger man sich kennt, desto größer wird dann gegenseitiger Vertrauen. कि अगर अड़ोस पड़ोस आपका ठीक ठाक है तो उसके बहुत फायदे हैं कि आप कहीं भी गए तो वहां छोड़ गए बच्चे को, और जितना ज्यादा दिनों से जानते हैं उतना ही बेटर है, बिकॉज उन पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो आप. Familien, die sich so gegenseitig helfen, wachsen zusammen. They just grow together. Im Idealfall entsteht eine jahrelange Freundschaft. Von den Eltern und Kindern gleichermaßen profitieren. Darum die höchste Zeit für die Wiederentdeckung der Tandemfamilie. कि इस तरह से अगर फैमिली मिल जाए आपको तो वो बहुत ही फॉर्चुनेट होंगे. So eins ist hier eine Möglichkeit der Kinderbetreuung. Ja, 2. Wohnenfamilie. Wohnenfamilie oft nicht in der Nähe der Großeltern. Ja, richtig. ये भी तो है कि भी 2 मीटर वर्क करती है ऑफनली.
In der ländlichen Schweiz, Switzerland में Nee, aber wohnen Familien oft nicht in der Nähe der Großeltern, haben die Familien kaum Kontakt zu anderen, arbeiten die Großmutter noch in hohem Alter. ये कह रहे हैं कि जो दादियां हैं वो ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होहम अल्टर का मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड एज में भी काम करती हैं. So इसमें दोनों क्या दे रखे हैं? Selbst wenn Großmutter, इसमें पहला तो इसने यही बोल दिया कि they don't live nearby und selbst wenn Großmutter kleiner Kinder in der Nähe wohnen, अगर वो आसपास में रहती भी हैं, sind sie häufig, they are working und haben daher nur wenig Zeit. So they are working and they have less time. ये तो क्यों नहीं है, मतलब ये भी तो मेंशन है कि दे रहती है. बिल्कुल ये भी हो सकता है. अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो इसी को करते हम लोग, है ना. और फैमिली ऑफ डिस्ट्रिक्ट वोनन फैमिली मतलब फैमिली पास में ही रहती है. यहाँ से देखो ऑफ्ट वोनन दी ग्रोस एल्टर्न und andere Verwandten, मतलब फैमिली ही हो गया ना ये. हाँ जी, ये तो हो गया. सो वाइट वेग, वो दूर रहते हैं, मतलब पास में नहीं रहते. auf Kinder aufzupassen und selbst wenn, और अगर वो रहते भी हैं तो वो वर्किंग होती है और उनके पास कम टाइम होता है अपने पोते पोतियों के. मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि रहते ही हैं पर वो काम करते हैं. हाँ. मतलब थर्ड वाला भी आ सकता है ना. हाँ, अगर ये वाला नहीं होता तो इसी को करते हैं हम लोग, आता ही है पक्का. है ना. इसमें जैसे ये आंसर हमको मिल रहा है और अगर ये नहीं होता तो इसको करना ही पड़ता, क्योंकि ये भी टाइल वाइज ठीक ही है ये, है ना. हो हम ऑल्टर का यहाँ पे हालांकि दे नहीं रखा, हो हम ऑल्टर नहीं दे रखा कि हो हम ऑल्टर मतलब बहुत ज्यादा एज में, क्योंकि ग्रैंड मदर तो कम एज की भी हो सकती है. बट कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो सकता था अगर पहला नहीं होता तो. Der Kindergarten ist in der Schweiz nicht umsonst. Nicht umsonst. It's not free. Ja. Alternativen sind selten. Kosten Geld und haben oft zu kurze Öffnungszeiten. Also, das heißt, it's not free. Sie müssen bezahlen. Okay? Und hier dann 5, Teil 5. Mit dem City Bike. City Bike is cycle. आ बे उधर से. इसमें भी कुछ कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग लगा होगा एक आध है. इसकी सर वोकैब बहुत ज्यादा टिपिकल होती है. ये जो लास्ट वाले सर इनमें वोकैब टिपिकल होती है. और जैसे 7th और 8th वाला किया था सर, उसमें जो अनसाइगे वाला था उसमें सर डायरेक्ट दे ही रखा, डायरेक्ट बस लिख रखा कि उनको ये पसंद है, मतलब बता नहीं रखा मतलब क्या चीज रिक्वायर्ड है, कुछ भी नहीं देखा. वोकैब तो टिपिकल आएगी ऑफ कोर्स, हम करते जाएंगे जितना अपन से होगा. टिपिकल आएगी बट नॉट करते जाओ उसको. वोकैब का तो यही है. और कभी कभी फिर भी ऐसे लगेगा आपको, जैसे अभी जैसे डबल 2 आंसर लग रहे थे, तो ऐसे कभी कभी लगेगा हम हमारी समझ के हिसाब से जो बेस्ट है वो करके आएंगे. Mit dem City Bike, was ist die Antwort hier? A, B, C. Wir versuchen zu. C? Ja, sir. Kann man fahren, so oft man will. Okay? Umsonst ist das nicht, ja. Man kann höchstens 60 Minuten pro Tag. कि आप दिन में 60 मिनट ही चला सकते हो, ऐसा तो कोई रूल नहीं है इसमें. और पॉकेट में चला सकते हो ऐसा भी नहीं है. तो man kann fahren, so oft man will. Ausländische Touristen
foreigners. What is the unquote here? A or say? और बे ये वाला सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, सारा कुछ ही लग रहा था। हाँ, ये कंफ्यूजिंग ही है। Können sich keine Räder entlehnen? पहला तो ये कि जो फॉरेनर्स आएंगे वो साइकिल नहीं ले सकते, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा हो ये नहीं तो सकता। नहीं, ये और से थोड़ा कम। ओके से Brauchen für die City Bike Card eine Bank Automat कार्ड है कि उनको कोई बैंक से कोई तो कार्ड चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड टाइप का कुछ तो कार्ड चाहिए बैंक से। und können ihre Kreditkarte zur City Bike Card erweitern। वो अपना जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको सिटी बाइक कार्ड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दे रखा है क्या कुछ? सिटी बाइक कार्ड क्या दे रखा है? Sie erhalten eine eigene Karte। सिटी बाइक कार्ड को लेके यहाँ पे एक टेक्स्ट है थोड़ा सा। Sie erhalten eine eigene Karte für ihren Zugang zu City Bike। आपको मिलेगा, आइगन कार्ड है, आपका जो भी कार्ड है, आइगन है मतलब खुद का कार्ड मिलेगा आपको। फिर इरन सुगांग सिटी बाइक लेने के लिए आपको एक कार्ड मिलेगा एक्सेस करने के लिए। दी Abrechnung erfolgt über Bankeinzug von einem österreichischen Konto, कि उसका जो भी पैसा लगेगा वो तो बैंक से ही करवाना पड़ेगा आपको। आप ऑस्ट्रिया में है तो ये ऑस्ट्रिया का होगा, ये आटे नीचे लिखा हुआ है सिटी बाइक या वीन आटे मतलब ऑस्ट्रिया का है, तो अपना जो भी ऑस्ट्रियन बैंक है उसमें जाके आप इसको करवा सकते हैं, वहां से पेमेंट हो जाएगा मतलब। दी Zusendung der Karte dauert circa 3 Wochen, 3 वीक में आपको वो कार्ड मिल जाएगा, वहां पे आप अप्लाई करोगे तो। Für Angehörige können die zusätzliche Partnerkarte, okay, but we are talking about here foreigners ना, ausländische Touristen, उनके बारे में कर रहे हैं हम तो बात। Andere Karten, österreichische Automatkarten und alle Kreditkarten lassen sich ganz unkompliziert die Funktionen einer City Bike Card erweitern। ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रियन und alle Kreditkarten, कि कोई भी क्रेडिट कार्ड किसी के पास है, ऑस्ट्रियन तो है ही, कोई भी क्रेडिट कार्ड उसको एज ए सिटी बाइक कार्ड की तरह उसको करवाया जा सकता है, अपग्रेड कराया जा सकता है, या मतलब वो सर्विस उसमें चालू कराई जा सकती है। तो से होगा इसका आंसर। Ausländische Touristen können ihre Kreditkarte zur City Bike Card erweitern। करवा सकते हैं। म्यूजियम में से दे रखा था सर इसका, एक मिनट चेक कर लो एक बार। सही आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज ये ब्राउखन फ्यूर दी सिटी बाइक कार्ड eine Bank, मतलब फॉरेनर्स के लिए अलग से कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां दे रखा है कि जी ganz unkompliziert Funktion die Funktion erweitern। कोई भी क्रेडिट कार्ड भी दे रखा है ना साथ में सर। 28 बे आ रहा है सर, बे आ रहा है, बट यहाँ तो लिख नहीं रहा है, हो सकता है पे आए भाई जब आंसर दे रखा है तो। बट यहाँ पे देखो आप आंद्रे कार्टन का मतलब हो गया कोई भी कार्ड, केवल ऑस्ट्रियन ही नहीं, कोई भी कार्ड। यूस्ट्राइशे Bankomat Karten, कि ऑस्ट्रिया की बैंक की जो भी कार्ड है वो तो है ही। und alle Kreditkarten lassen sich ganz unkompliziert die Funktion सिटी बाइक कार्ड का फंक्शन के तौर पे वो erweitern का मतलब होता है उनको अपग्रेड करा जा सकता है। सो मेरे ख्याल से है। अगर आपका बी आ रहा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों, ठीक है। सो हो सकता है कभी कभी आपका आंसर गलत हो जाए भाई, है ना, बट अपन को क्या समझ आ रहा है उसके हिसाब से, जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो लगे वो करना है आपको।
या सर। है ना, ये भी हो सकता है आंसर ही गलत हो, ये भी हो सकता है अपन गलत हो, लेकिन हम तो अपने जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, ओ माइन सिटी बाइक फारन zu können for driving a city bike A B C, what may be the answer? सर इसमें आ और बे दोनों लिखे हुए सर इसमें पैराग्राफ में। और कि आप भी टर्मिनल से भी रजिस्टर कर सकता है और इंटरनेट पे भी कर सकता है, वो पहले यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, देखते हैं तो सर कौन सा बेस्ट माना जाए? Kann man sich auch an einem Terminal anmelden? किसी भी टर्मिनल पे, टर्मिनल का मतलब है जहां यहाँ पे भी वो सिटी बाइक्स अवेलेबल है, तो छोटे छोटे स्टेशन बने होंगे ना उसके, तो वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। आ का मतलब ये है muss man sich für das Rad, das man entlehnen will, im Internet anmelden। बे नहीं होना चाहिए, आ होना चाहिए इसका आंसर। बे नहीं होना, बे तो है कि हैव टू डू, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि इंटरनेट पे भी आप कर सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात इसमें देखो, एक ये चीज भी दे रखी है कि मूस मान जिस फुर 10 राट, उस साइकिल के लिए जो कि आप किराए पे लेना चाहते हो, इंटरनेट में रजिस्टर करना पड़ेगा। उस साइकिल के लिए थोड़ी अलग से करना पड़ेगा, आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर साइकिल कहीं से लो किसी स्टेशन पे छोड़ दो, ये है इसमें अंदर। तो से वाला भी तो ब्राउट मान उनबेडिंग दी सिटी बाइक कार से, ब्राउट मान उनबेडिंग दी सिटी बाइक कार, ये तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो सिटी बाइक कार्ड एब्सोल्युटली चाहिए, पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में अगर आपको सिटी बाइक चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है। हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मस्ट नहीं है ना, आपको अपने क्रेडिट कार्ड को भी तो आप एक्सटेंड करवा सकते हो, तो इसलिए उन बिडिंग वाला नहीं होगा। बात तो वही है कि चलाने के लिए आपको कार्ड चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन बिडिंग चाहिए ही चाहिए, इसकी बजाय आप अपना मान लो कार्ड नहीं लेना, आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ही आप बैंक से अपडेट करवा लो, उस तरह की फैसिलिटी उसी में करवा लो। सर आ कर रखा सर, वहां पर बे दे रखा है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को समझ आ रहा है ना? हाँ सर, अपन को समझ आ रहा है ना क्यों इसका आंसर आ क्यों होना चाहिए। हमको देखो, इसको पढ़ लेते हैं अपन, तो पता चले गलती करा दूं आपका, एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि Das Citybike Wien System ist ein innovatives und umweltfreundliches Verkehrsmittel। देखो Verkehrsmittel का आपको आर्टिकल पूछा था आज मैंने, Öffentliches इसी से पता चलता है कि दास होता है। Und kein traditioneller Radverleih, ये कोई ट्रेडिशनल साइकिल लेने वाला मामला नहीं है, ये मॉडर्न है थोड़ा। Die Räder können an über 120 Bike-Stationen in ganz Wien entlegt werden। साइकिलें 120 स्टेशन पूरे सिटी में, जितने भी जो वीन में 120 स्टेशन है इन साइकिल्स के, किसी भी स्टेशन पे आप लो, किसी पे भी खड़ी कर दो। तो ये कह रहे हैं कि über 120 Bike-Stationen in ganz Wien entlegt werden, इसका मतलब कहीं से भी आप कर सकते हो, über over more than 120 stations, über का मतलब है more than। Die Rückgabe ist an jeder beliebigen Station möglich, आप किसी भी स्टेशन पे वापस छोड़ सकते हो, unabhängig davon wo die Fahrt begonnen wurde। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो जर्नी है कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, और वापस वहीं थोड़ी जाके लेके आएगा आदमी, कह रहे हैं किसी भी स्टेशन पे आप छोड़ सकते हो। Und das 24 Stunden lang 7 Tage die Woche, also मोबिल sein, wann immer Sie wollen, जब चाहे तब आप मोबिल रहें। और हमको ढूंढना क्या था इसमें, फार्म सेकंड। City Bikerin zu werden bedarf es einer einmaligen Anmeldung, only one time registration is required। melden Sie sich jetzt im Internet an, इंटरनेट में रजिस्टर करो, am Terminal Zeit zu sparen, कि टर्मिनल में जाके वहां पे अपना टाइम बच जाए। Sie können die Anmeldung auch an jedem City Bike Terminal vornehmen, किसी भी टर्मिनल पे भी आप
कर सकते हो ये रिक्वायरमेंट पूरी, वहां पे भी रजिस्टर कर सकते हो किसी भी सिटी बाइक स्टेशन पे जाके भी। और मिल्टन जी GHC में इंटरनेट, आप अभी खुद को इंटरनेट में रजिस्टर कर दो आम टर्मिनल साइट सुस्पारन, ये टर्मिनल में जाके आप टाइम बचाना चाहो तो, है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी है इसमें। तो इंटरनेट में आप रजिस्टर कर दो अभी, और यही काम जी क्योनन की अनमेल्डुम औख से ही पता चलता है कि इंटरनेट पे खुद कर दो या इन पे जाके कर दो। क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, खानमान जिश औख आन आइनम टर्मिनल अनमेल्डन। हाँ ये सही है, बिल्कुल यही सही है ना। सर मुस लगा रखे हैं, मींस हैव टू डू, तो मतलब कंपल्शन हो जाती है ना मुस लगाने से। हाँ मतलब ये आंसर नहीं है, आ है इसका आंसर। अभी आपके उसमें बे दे रखा है तो दे रखा होगा, लेकिन अपन को इसका समझ आ रहा है ना, आ है आंसर। हाँ है सर। हाँ आई होगा इसका आंसर। दे नहीं हो सकता, मतलब दे में तो कंपल्शन आ गई ना कि उन्हें करना ही करना है। नहीं देखो कंपल्शन भी आ गया, दूसरी बात इस सेंटेंस का मतलब समझो आप। इस सेंटेंस में बोल रहा है ये मूस मान जिस फ्यू दस राट, दस मान, ये दास यहाँ दोबारा राट के लिए आया है कि आदमी को उस साइकिल के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे साइकिल का नंबर मान लो 224 है, तो 224 नंबर की साइकिल के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा जो आप किराए पे लेना चाहते हो। अरे भाई हर बार उस पर्टिकुलर साइकिल का चक्कर ही नहीं है यहाँ। तो हो सकता है कि दिन में आप 4 साइकिल बदलो, एक स्टेशन से दूसरे पे छोड़ी, वहां से दूसरी ली, तीसरे पे छोड़ी, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो कह रहे हैं कि आप जितनी बार लो यूज, ये 24/7 सर्विस है, आप रजिस्टर करो, जो भी पेमेंट है वो तो देना ही है आपको, लेकिन कहीं से भी लो, किसी भी स्टेशन पे छोड़ो, स्टेशन टू स्टेशन। लेकिन उस पर्टिकुलर साइकिल की बात नहीं है कि उस साइकिल के लिए करना पड़ेगा, आपका वन टाइम है रजिस्ट्रेशन, लिखा है ना एक बार, आइन मालीगर ये रहा। इतनी जनरली मूस वाला भी चक्कर पड़ता है, लेकिन इसमें मूस के कारण ये आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए खास तौर पे रजिस्टर करना पड़ेगा। नो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, साइकिल कोई सी उठाओ कोई सी छोड़ो। ये रिलेटिव वाला लग रहा है ना। हाँ रिलेटिव का है इसमें। ओके नेक्स्ट। सर द्राइशिश में आम आप या सर को पता नहीं से दे रखा है। ओके क्या है ये, दी फारेडर डेस सिटी बाइक्स व्हील सिस्टम, कि इस व्हील सिस्टम की जो साइकिल्स जो हैं वो sind umweltfreundlicher als traditionelle Räder, ये ट्रेडिशनल साइकिलों से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। पहले तो ये दे रखा है मिशन अंडर स्टार्ट शुरू गेबन, आपको जहां से स्टार्ट करी थी वहीं पे वापस ले जाके खड़ी करनी पड़ेगी साइकिल। ये बी तो नहीं है आंसर, नहीं बी तो नहीं। हाँ क्योनन आन मेर als Axis Bike Stationen abgeholt und abgegeben werden, कि 80 से ज्यादा स्टेशन है जहां पे आप ले सकते हो और छोड़ सकते हो। तो से होना चाहिए आंसर मेरे ख्याल से। क्या लग रहा है इसमें आंसर? सर बे क्यों आ क्यों नहीं है? आ क्यों नहीं है वो देख लेते हैं अपन। आ में भी सूट कर रहा है, आ में इसने बोला है कि ये जो उमवेल्ट फ्रेंडलीशर, ये जो साइकिल है ना अब की बार वाली, ये जो ट्रेडिशनल साइकिलें होती थी उससे भी ज्यादा पर्यावरण फ्रेंडली है, ऐसे दे रखा है, उससे भी ज्यादा। और यहाँ पे क्या लिखा है? वो उमवेल्ट काइंड ट्रेडिशनल मतलब वो ट्रेडिशनल नहीं है और फिर उनके ट्रेडिशन ट्रेडिशनल तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल से ज्यादा पर्यावरण फ्रेंडली है। ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे तो यही तो लिखा हुआ है, दास सिटी बाइक व्हील सिस्टम इज टाइम इनोवेटिव उमवेल्ट फ्रेंडली, इनोवेटिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्सपेरिमेंट है ये, लेकिन वो पहले वाली से भी ज्यादा है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आगे इसने लिख दिया कि काइंड ट्रेडिशनल, कि ये ट्रेडिशनल टाइप का मामला नहीं है। तो मामला तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनसे ज्यादा फ्रेंडली है ऐसे थोड़ी लिखा है। सो दैट्स व्हाई सी इज द आंसर। नेक्स्ट 8 तक में और कौन सा है?
हमारे कोई गलत भी हो सकता है, चिंता नहीं करनी, हमको बस लॉजिकली सोचना है, दैट्स इट। कोई आंसर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, चिंता मेरा भी गलत हो सकता है, अपन कोई चीज छूट जाए, मान लो ध्यान नहीं दें तो, लेकिन हमको ट्राई करना है बेस्ट। सर सेक्स वाला मॉडल टेस्ट एंड Teil 1 में लास्ट वाला क्वेश्चन। Also lesen 6 und Teil 1 में लास्ट क्वेश्चन। aha, this one Teil 1 किस बारे में है ये? गेस्ट्रीगन अर्लेबनिश, कोई अपना कल का यस्टरडे का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, किस बारे में है ये? एक्सपीरियंस है सर। किस बारे में है ये? Ich möchte heute von meinem gestrigen Erlebnis berichten, das mich sehr beeindruckt hat. कल का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो वास्तव में मुझे बहुत इम्प्रेस किया, प्रभावित किया। Vor ein paar Tagen lernte ich eine ältere Dame. For few days, before some days, मेरे को एक ओल्ड लेडी से परिचय हुआ मेरा, फ्राउ मोलाउ इन देयर स्ट्राशनबाहन केनन, ट्रेन में जो वहां का मेट्रो है उसमें उसका परिचय हुआ। इस बॉट ईयर माइनन जिट्स प्लाट्स मैंने उसको ऑफर किया कि मेरी सीट पे बैठ जाओ, ओल्ड लेडी थी। und so kamen wir ins Gespräch, बातचीत करी, फिर हमने es stellte sich heraus, dass sie an derselben Station ausstieg wie ich। बात करने से पता चला उसी स्टेशन पे उसको भी उतरना था और जिस पे मेरे को। Sie wohnte nämlich seit sie in Pension gegangen ist in Generationenwohnheim bei uns in der Nähe, हमारे पास ही वो Generation Wohnheim में रहती है। कुछ इस तरह के Wohnheim है जर्मनी में जिसमें कई जनरेशन साथ में रहती है। Beim Abschied lud sie mich mit Familie zum Kaffee trinken zu sich ein। उसने मेरे को उतरते टाइम पे, गुड बाय बोलते टाइम पे इनवाइट किया कि फैमिली के साथ कॉफी पीने आना। आपको लास्ट वाला समझ नहीं आया इसमें? फ्राउ मोलाउ नाम an einem Ausflug ins Bürgerland Teil। ब्यूरगरलैंड करके कोई एक जगह है, वहां पे एक मैडम ने भी पार्टिसिपेट किया, मतलब आउटफ्लूग का मतलब पार्टिसिपेट, मतलब पिकनिक पे गई। तो ये बुर्गरलैंड में पिकनिक पे गई या नहीं गई, आपको क्या लगता है? पहले ये बताओ, फिर देखते हैं आंसर। लास्ट में होगा, लास्ट वाले का आंसर। लास्ट वाले दे लास्ट वो तो इसमें तो कह रहे हैं गई है, बट दो मिक्स कर रखे, प्रेजेंट और पास्ट। अभी देख लेते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। regelmäßig werden auch gemeinsame Ausflüge organisiert, कि रेगुलरली वो जिस वोनहाइम में रहती है वहां की बात हो रही होगी कि regelmäßig werden auch gemeinsame Ausflüge, कि एक साथ कुछ पिकनिक भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। Der letzte ging ins Burgerland, मतलब अक्सर यहाँ पे पिकनिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और लास्ट वाला था वो बुर्गरलैंड गया पिकनिक। Sie selbst nimmt zurzeit an einer Kochgruppe teil। देखो वो लास्ट वाला यहाँ गया, वो थोड़ी कह रही है कि मैं भी गई उसमें। आगे देखो जी selbst, अब ये दूसरे की बात हो रही है, ये बात ही अलग होगी, पहली बात यहाँ पे खत्म है। जी selbst यहाँ पिकनिक की बात हो रही थी, अब है जी selbst nimmt zurzeit an einer Kochgruppe teil। she herself is taking part in some cooking, में भी कोई कुकिंग साथ में कर रही होंगी, सीख रही होंगी। वो Jung und Alt voneinander lernen, ऐसा एक कुकिंग कोर्स कर रही है या फिर कुछ कुकिंग का काम है जो यंग और ओल्ड लोग मिलके करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो तो ठीक है। और वो लोग है वो ऑर्गेनाइज भी कराता है। लास्ट वाला ब्यूरगरलैंड भी गया, लेकिन वो साथ में गई कि नहीं गई ये लिखा हुआ है क्या? नहीं, फॉल्स है। तो ये फिर फॉल्स होना चाहिए। आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो यही है इसका रीजन कि इसमें दे नहीं रखा कि वो गई कि नहीं गई। एक बात करते करते उन्होंने दूसरी बात स्टार्ट कर दी, उससे अलर्ट रहना अपन को। नेक्स्ट,
सर मॉडल पेपर जीवन टाइल्स वाई। मॉडल टेस्ट जीवन टाइल्स वाई। ओके, सर ये टाइल आइंस में भी ऐसी सेम प्रॉब्लम आई थी सर। हाँ तो टाइल लाइंस का भी जो प्रॉब्लम आई है उसकी देखेंगे ना क्या दिक्कत है। सर फियर क्वेश्चन फियर। ये किस बारे में है, फेसबुक का है क्या, फेसबुक फ्रॉड है, किस बारे में, ये अपने फेसबुक फ्रेंड्स के बारे में लिखा है क्या, या उन्हीं को लिखा है डायरेक्ट ग्रुप साइड उन्हीं को लिखा है। लेसन फ्राइडाग के बारे में सीलवादी फ्राइड साइड पार्क, ये अपने फेसबुक फ्रेंड्स को लिख रहा है कि लास्ट टाइम हमने ये कोई पिकनिक किया है सीलवार फ्राइड साइड पार्क हम अटमत अर्ट्स मैनिश इन देयर नेहे फोन सूरिश, ये कोई अपना एक्सपीरियंस कर रहा है। थर्ड वाला शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस फियर Urs hatte schon mal Parkours gemacht। ऑलरेडी वो पार्कोर्स कभी किया है या पहली बार किया इसने? और इसमें सर यही समझ नहीं आ रहा, इसमें कहीं पे तो दे रखा है कि ऑलरेडी किया है, कहीं पे से दिखाओ कहाँ, कहीं पे नहीं, ये बताओ कि यहाँ पे दे रखा है, उससे पता चलेगा। कहीं पे तो हो सकता है नहीं दे रखा हो, फिर भी तुम बोल दो, तुम बताओ कि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि दिया है लेकिन दिया नहीं। एक मिनट देख लेते हैं। meine Gruppe wählte einen mittleren insgesamt की नीचे वाले नाम से। ओके, und die Kollegen waren, ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं फ्राइड साइड पार्क नीचे नीचे लास्ट सेकंड पैराग्राफ here nach dem ऊपर ऊपर। okay, nachdem wir unten angekommen waren ging es dann zum Kletterpark। Insgesamt gab es 7 Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden। Meine Gruppe wählte einen mittleren Schwierigkeitsgrad। अलग अलग लेवल की डिफिकल्टी कुछ इसमें आ रही होगी कि आपको चूज करना होता है कि कितना डिफिकल्ट वाला रास्ता आप चूज करते हो, ऐसा कुछ होगा इसमें। Da alle außer mir schon etwas Erfahrung damit hatten। देखो इससे पता चल रहा है कि ये तो पहली बार आया है यहाँ पे। ये कह रहा है da चूंकि alle außer mir मेरे को छोड़ के schon etwas Erfahrung damit hatten कि उनको ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस था मेरे को छोड़ के। Das es für mich das erste Mal war। अब दोबारा एक्सप्लेन कर दिया इसने कि ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब nicht, तो मैं चुप रहा। तो इसमें Urs hatte schon mal gemacht, nein, false। आंसर क्या है इसका? false होना चाहिए। false आ रहा है सर। false से आएगा क्योंकि इसने लिखा है ये ज़ाब्ते इश्निश जो है ये मतलब इसको एक्सपीरियंस नहीं था उसके रिगार्डिंग बोल रही है। ये कह रहा वहां पे हर कोई ज्ञान दे रहा था, बात कर रहे थे, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, मैं केवल ऑब्जर्व कर रहा था। जिसको एक्सपीरियंस है वो तो बोलेगा कि ऐसा कर लो, ये कर लो, ये है वो है, बट ये चुप रहा क्योंकि he watched for the first time। लिखा है यहाँ पे दोबारा से, पहले तो यहाँ पे भी दे दिया हिंट, फिर दोबारा दे दिया das es für mich das erste Mal war। Next, dann was hast du gesagt? Noch 2 oder 3? Solarium का मीनिंग समझ। सोलारियम तो कुछ भाप वाप देने का मामला होगा, जो स्टीम बाथ होता है ना, स्टीम बाथ उस तरह के होते हैं, वहां पे पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तो सोलारियम फॉरबोर्ड फ्यूर युगेंग्लिश है, मतलब होता क्या है आपको बताऊं मैं कि ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे ठंडे प्रदेश है ना, खास तौर पे वहां के लोग सूरज को ढूंढते हैं क्योंकि सूरज चमकता ही बहुत कम है। अपनी तरह थोड़ी कि सर्दियों में भी हमेशा चमक रहा है, उनके तो गर्मियों में कुछ दिन चमकता है, सर्दियों में कभी आ गया नहीं आया ना, तो ज्यादातर ठंडा ही रहता है। तो वो चाहते हैं मौका मिलते ही
सूरज चमका तो उसको सेलिब्रेट करने के हिसाब से निकल जाते हैं बीच, जहां भी बीच मिलता है आसपास में, जहां भी वहां जाके लेटते हैं। आप देखोगे अक्सर वो सूरज के नीचे डायरेक्ट कपड़े निकाल के धूप ले रहे होते हैं। तो धूप लेने से टैनिंग बोलते हैं इसको, टैनिंग। धूप लेने से जो आपकी स्किन पे डायरेक्ट जो होगा वो कलर भी थोड़ा चेंज होता है, लगातार आप धूप में बैठो तो उसको टैनिंग बोलते हैं। और ये रिचनेस का सिंबल है कि टैनिंग हो रखी है, इसका मतलब है कहीं घूम के आए हो, फ्री टाइम भी आपने स्पेंड किया है। तो ये तो अवेलेबल होता नहीं भाई, क्या करें? तो फिर क्या है कि ये सोलारियम, ये क्यूर्सलिश, ये एक तरह से सोलर सिस्टम से चलने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है। ये डायरेक्ट असली सूरज तो नहीं, लेकिन इस मशीन को मान लो कि उसके नीचे बैठ के आप टैनिंग कर ले रहे हो, उसमें से वो गर्मी निकलती है। तो जुगेंटliche Unterachsen Jahre, ये कह रहे हैं Verbot für Jugendliche है कि ये तो इट इज प्रोहिबिटेड, ये 18 से कम कि तो करो ही मत इसको। Jugendliche Unterachsen Jahren dürfen nicht mehr ins Solarium. Das verlangt nun ein Gesetz in Österreich. ऑस्ट्रिया में तो कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है इसको लेके। देयर इज ए डिमांड, लोग कहते हैं कि बंद कराओ इनका, 18 से पहले ही जोलारियम में जा रहे हैं। जैसे अपने कहते हैं कि कोई बियर वगैरह नहीं पिए, शराब नहीं पिए, है ना, कम से कम ऐसे एक सामाजिक प्रेशर रहता है, ये कह रहे हैं कि वहां नहीं जाएं जोलारियम में। Die Ärzte freuen sich, die Solarienbesitzer ärgern sich। डॉक्टर तो खुश है कि भाई लोग बीमार नहीं होंगे, हो सकता है इससे कोई कई तरह की बीमारियां होती होंगी, कैंसर वगैरह, क्योंकि डायरेक्ट तेज धूप एक तरह से अल्ट्रा विकिरण तो हो सकता है। सर सनरेज को बोल रखा है जिसमें कोई जोलारियम, जोलारियम का मतलब है कृत्रिम सनरेज, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इस तरह की मशीनें बना रखी है भाई जो आपको हीट देंगी, धूप का सा वो काम करेंगी, लाइट इतनी ज्यादा चमकेगी आप पे। तो लोगों ने खरीद रखे हैं भाई, पता है उनको कि लोगों को चाहिए गर्मी इस तरीके से। सो डॉक्टर तो खुश हैं कि बीमारियां कम होंगी। और जोलारियन बिजिट्सर जिन्होंने ये मशीनें खरीद रखी हैं, एर्गेरेंजिश जुगेंटliche dürfen Objection Jahren अल्कोहल ट्रिंकन, वो कह रहे हैं कि 16 साल में आप उनको अल्कोहल तो पीने दे रहे हो, स्मोकिंग करने दे रहे हो, aber nicht in Solarium, darüber wurden sich auch die Betroffenen selbst, ये इस बारे में डिस्कशन चल रहा है। Äußerst positiv sehen nur Dermatologen dieses Gesetz, ये होते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, उनकी भी इसमें राय आ रही है। जीविशन, उनको पता है das ist Hautschäden, Hautschäden मतलब स्किन को नुकसान हो रहा है, शेडन डैमेज हो रही है, तो स्किन स्पेशलिस्ट तो जानता ही है। Die durch ultraviolette Strahlen verursacht werden, ये डैमेज जो है अल्ट्रा रेज निकलती हैं उससे, इट इज डैमेज umso stärker bemerkbar machen je früher sie im Leben stattfinden। जितना जल्दी एज में आप जोलारियम के नीचे बैठोगे जाके, उतना ज्यादा नुकसान है, क्योंकि आपकी बॉडी तो उतनी स्ट्रांग हुई नहीं अभी। लेटर एज में तो कोई बात नहीं, बट शुरू में तो मत जाओ। Dabei spielt keine Rolle, ob die Strahlen von der Sonne oder vom Solarium gekommen sind। वो कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्ट सूरज से आ रही है कि वो कोई जोलारियम से आ रही है, विकिरणें अगर तेज है तो उससे तो नुकसान होगा ही। Wenn die Sonne in Kindheit und Jugend die Haut verbrannt hat, sei das der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung des Melanoms, sagen die Fachleute, Expert कह रहे हैं कि इससे रिस्क है। Sie finden es gut, dass man die Jugendlichen von dieser Gefahr schützt, and they find it good कि आप यूथ को बचा रहे हो इससे प्रमोट करके। dass man die Jugendlichen vor dieser Gefahr, this danger, schützt and protect। Denn Jugendliche denken selbst an die Folgen ihrer Verhaltens und rechnen nicht damit, dass sie später krank werden und Hautkrebs bekommen können। Hautkrebs ist Cancer। कि यंग लोग कहाँ सोच पाते हैं कि लेटर एज में उनको कैंसर भी हो सकता है इस तरीके से।
अगर बिहेव नहीं बदला तो। Folgen का मतलब आफ्टर इफेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर, दे कांट फोरसी। Teenager müssen jetzt aber nicht gänzlich auf einem braunen Teintwerk verzichten. Immerhin gibt es die Möglichkeit, selbst Bräuner zu benutzen. Das ist eine Creme. ये कह रहे हैं कि आप अपनी स्किन को ही तो थोड़ा वो ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, इस चक्कर में जाके बैठते हो। अरे क्रीम भी आती है, उसे ही कर लो। ऑप्शन दे रहे हैं, das ist eine Creme. Haut verteilt wird und dann bräunt. Ohne Sonne oder Solarium. Der einzige Nachteil, die Bräune aus der Tube hält nur einige Tage. नुकसान केवल एक ही है, ये जो टैनिंग होती है सोलारियम से या सूरज से, वो काफी दिन तक चलती है बॉडी पे, और ये जो क्रीम वाली है ये कम दिन तक चलती है। ये नुकसान है बस। So in diesem Text geht es darum, worum geht es hier? Warum das Solarium für Jugendliche schädlich ist? B. Warum das Solarium für Jugendliche schädlich ist? Okay, ja. B ist die Antwort dann. Die Ärzte 11. Was sagen die Ärzte? Sir, Die Ärzte empfehlen den Jugendlichen eine Creme, die selbst bräunt. डॉक्टर दे रहे हैं क्या ये सलाह? Teenager müssen उससे अच्छा जो है कि मतलब क्रीम लगा दो उससे। Teenager müssen jetzt aber nicht gänzlich auf Bräunen verzichten. Immerhin gibt es Möglichkeit. तो डॉक्टर बोल रहे हैं क्या ये बात? ऐसे मेंशन तो नहीं किया। और क्या ऑप्शन है इसमें? वोलन दास alle Solarium schließen. डॉक्टर चाहते हैं कि सारे के सारे सोलेरियम बंद हो जाए। meinen, dass Jugendliche nicht daran denken, was später passieren könnte. कि ये यंग बच्चे सोच नहीं पाते कि बाद में क्या हो सकता है नुकसान इसका। थर्ड वाला तो आया था इसमें, से होगा इसका आंसर मेरे ख्याल से, क्योंकि meinen, dass Jugendliche nicht daran denken, denn Jugendliche denken selten an die Folgen ihres Verhalten. Hautkrebs भी हो सकता है, तो डॉक्टर ही कहेगा ना ये वाला। So say sollte die Antwort sein. सर ये इसलिए नहीं आया क्योंकि डॉक्टर ने नहीं बोला। डॉक्टर ने नहीं बोला कि ये क्रीम लगाओ, ये तो ऑप्शंस कह रहे हैं कि और भी ऑप्शन होते हैं इन चीजों के। यहाँ पे चल रही है बात, बट डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप ये लगाने लग जाओ। ये तो कोई ब्रांड होगा, ऐसे किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रॉइन है, ये तो कोई ब्रांड है, तभी तो उन्होंने बोला कि ये ब्रॉइन क्या है, das ist eine क्रीम है, ये कोई क्रीम है। Die Sonne soll kann der Haut genauso schaden wie das Solarium, tut der Haut gut, schadet Jugendlichen weniger als Erwachsene? A sollte die Antwort sein. A. या बिकॉज इट्स रिटन कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्ट सूरज से आ रही है विकिरणें या जोलारियम से, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो नुकसान तो देंगी। ओके नेक्स्ट, जीवन। ओके Augenacht. Hatten Sie auch noch Probleme oder war unter Kontrolle? Ja, Hars? Ja, sir, no problems. Also bis 8 ist jetzt alles unter Kontrolle. Ja, sir. Okay. Und was hatten Sie noch gemacht? Lesen und sprechen.
ओके एक्सप्रेशन टाइल सर ये लेसन मॉडल पेपर्स में 7 वाला से लास्ट वाले में प्रॉब्लम आई थी मॉडल पेपर 7 में हियर फॉन्ट वाला Hund. So Sie möchten mit Ihrem Hund an Hundesportprüfungen teilnehmen. Hundesportprüfungen का मतलब अपने डॉग्स की कुछ एग्जाम करवानी है. स्पोर्टप्रूफुंगन डॉग्स की स्कूल होती है, वहाँ पे कुछ बिल्लों हैं, कुत्तों की बिल्लियों की स्कूल्स होते हैं, रेगुलरली ट्रेनिंग लेते हैं वो, है ना. इस तरह का इसमें कुछ मामला है कि इसमें वोकैब बहुत ज्यादा सर. Voraussetzung dafür ist aber, dass Bestehen der Begleit- und Prüfung und deshalb lesen Sie die Bestimmungen des VDH für diese Prüfung. ओके उस एग्जाम को लेके इसमें कुछ इंफॉर्मेशन तो दे रखी है कि किस तरह की एग्जाम है, क्या है, कब है, इस तरह से दे रखा होगा. सो jeder Teilnehmer muss Teilnehmer ये तो Geld für die Teilnahme an der Prüfungssaalen. Geld für die Teilnahme zahlen कि आज से तो आपको पैसे तो देना पड़ेगा. ओके und next Für die Teilnahme an Prüfungsteil B muss der Hund zuerst Prüfungsteil A bezahlen haben. Bestanden haben. so für die Teilnahme an Prüfungsteil B, तो इसमें A B ये कह रहे हैं कि B में पार्टिसिपेट करने के लिए A को पास होना जरूरी है. A को पास होना जरूरी है. muss der Hund zuerst Prüfungsteil A bestanden haben. kann der Hund bis zu 70 Punkten erhalten. 70 उसके मार्क्स आने जरूरी है. kann man vor der Prüfung mit dem Hund auf einem Übungsplatz trainieren. तो आपने A बोला इसका आंसर. या सर. वो ist es. Bewertung hier. Okay. Hunde, die im Teil A Begleithundprüfung auf dem Übungsgelände nicht die erfolgreichen 70% der Punkte erreichen, werden nicht zu Teil B. तो बोल रखा है इसने कि जिन्होंने 70% मार्क्स टाइल ए में अर्फोल्डलिशन जो भी रिक्वायर्ड है 70% मार्क्स अगर नहीं आएंगे तो बी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो इसका मतलब A1 तो पास करना जरूरी है. परसेंट बोला है, पुंक्ट नहीं बोला ना. हाँ सर. तो इसलिए बे नहीं आंसर, आई है इसका आंसर. करेक्ट. और हियर Veranstaltungen finden, मतलब एग्जाम कब होते हैं. Veranstaltungen का मतलब इवेंट वो कब ऑर्गेनाइज करते हैं, ये एग्जाम वाला इवेंट. इसमें ऑप्शन दे रखा है 22 लिस्टन वेटर नेक्स्ट स्टार्ट. बैड वेदर में नहीं होता. नूअरसू बेस्टिंगटन टर्मिनन स्टार्ट. फिक्स कुछ डेट्स होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं. जैसे मान लो दे रखा हो कि 3 अक्टूबर या फिर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ऐसे करके कुछ फिक्स डेट हो सकती है. Jederzeit mit Erlaubnis des Prüfungsleiters start. इसका आ आएगा सर. फर्स्ट लेस्टन वेटर नेक्स्ट स्टार्ट. फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड लाइन. ओके. Yes. Prüfungsveranstaltungen können das ganze Jahr hindurch durchgeführt werden. ये पूरे साल होता है. When the weather verhältnisse es erlauben. अगर वेदर ठीक है तो इसका मतलब खराब वेदर में नहीं होता. ओके या तो आज की antwort लास्ट वाले में प्रॉब्लम आई थी सर, समझ में नहीं. इसमें für die Begleithundprüfung gilt. चारों पढ़ दो इसमें. Es dürfen nur bestimmte Hunderassen teilnehmen. इसमें कोई पर्टिकुलर कुत्ते की प्रजातियों के लिए ही है. पहला तो ये है. Hunderassen का मतलब पर्टिकुलर कुछ रेसेस
कि भाई हम तो पोमेरियन कुत्ते के लिए ही करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कुत्तों के लिए है क्या ये? नेक्स्ट, Es gibt ein Mindestalter für die Hunde. मिंडेसाल्टर का मतलब है कि कुत्ते की एक मिनिमम एज होनी जरूरी है, उससे कम वाले को एग्जाम के लिए नहीं लेंगे हम लोग। बाय वेनिगर als Wolf teilnehmern finden die Prüfung nicht statt, कि अगर 12 से कम लोग होंगे तो भाई एग्जाम नहीं होगी। तो मिंडेसाल्ट कोई दे रखी है क्या इसमें? को पढ़ना पड़ेगा। Prüfungsteilnehmer. Der Prüfungsteilnehmer muss den Meldeschluss der Prüfung Veranstaltungen einhalten. Die Abgabe der Meldung verpflichtet sich der Teilnehmer, die Startgebühr zu bezahlen. Sollte ein Teilnehmer aus irgendwelchen Gründen am Erscheinen verhindert sein, muss er dies unverzüglich den Prüfungsleiter mitteilen. Der Teilnehmer muss die für den Veranstaltungsort geltenden Vertreter und Tierschutzbestimmungen einhalten. Zugelassen sind Hunde aller Rassen. aller Rassen के कारण पहला तो नहीं है इसमें कि zugelassen sind, मतलब सबको एडमिट किया जाता है। aller Rassen und Größen, कोई भी साइज का कुत्ता हो और कोई भी रेस का हो सकता है। अब dem Alter von 15 Monaten, यहाँ होगा आंसर। अब dem Alter von 15 Monaten, लेकिन 15 मंथ की एज से, इसका मतलब है 15 मंथ से कम वाले को नहीं अलाउ, तो मिनिमम एज होगी ना इसमें। Es gibt ein Mindestalter. There is a minimum age. मिनिमम या Mindestalter का मतलब है मिनिमम एज होनी चाहिए। यहाँ दे रखा है कि 15 महीने, उससे कम में नहीं। तो das ist dann die Antwort. आंसर यही दे रखा है। हाँ सर। या das ist dann richtig. सर जो लास्ट लाइन में 12 के बारे में लिखा है वो मतलब वो क्यों नहीं है सर, उसमें भी वो भी लिखा हुआ है। ये वाला हाँ, इसी में जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे इसमें लास्ट में कुछ ज़ोल्फ के बारे में मेंशन है ना, बेट्राग ज़ोल्फ स्टार्टर। हाँ, बेट्राग ज़ोल्फ स्टार्टर। There's two last line. ये वाला Die zulässige Teilnehmerzahl, ये कह रहे हैं कि एडमिशन का जो नंबर है an einem Prüfungstag, एग्जामिनेशन के डे, für einen Prüfungsleiter beträgt 12 Starter. Prüfungsleiter जो भी होगा 12 Starter. Just say by Vinegar als Wolf Teilnehmer findet die Prüfung nicht statt. Bei Vinegar als Wolf Teilnehmer findet die Prüfung nicht statt. कि अगर 12 से कम होंगे तो एग्जाम नहीं होगी, ये लिखा है इसमें। तो ये भी यहाँ पे zulässige Teilnahmezahl, एडमिशन का जो नंबर है an einem Prüfungstag für einen Prüfungsleiter, एक एग्जामिनर 12 तक लेगा, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब Prüfungsleiter für einen Prüfungsleiter, कि भाई बहुत सारे Prüfungsleiter होंगे उसमें, तो एक बंदा 12 तक करवाएगा, बट उससे कम में एग्जाम ही स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है इसमें। एक बंदे को राइट दे रखा होगा कि 12 तक तुम कर सकते हो, कुछ वो पेमेंट लेते होंगे अकॉर्डिंगली, कुछ तो फिक्स कर रखा होगा उन्होंने, बट ये नहीं ले रखा इसमें कि भाई 12 से कम में एग्जाम नहीं होगा, ऐसा नहीं दे रखा इसमें। ओके, एक दिन में एक बंदा 12 का वो करवाता होगा, इसमें 12 लोग कुत्तों के एग्जाम लेता होगा, तो उसकी बाकायदा टाइम लगता होगा एक एक के लिए, तो 12 तक का उसका है मामला। ओके, डन।
Yes. Und was war noch? Sprechen.